So here second is Frobenius method. If x is equal to 0 is a regular singular point, in this case we solve that problem by Frobenius method, which is an extension of power series method. So following are steps of Frobenius method. Step first is let y is equal to summation n from 0 to infinity cn x to the power n plus r be the solution of given differential equation. Frobenius method के लिए हम इसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन एज्यूम करते हैं. स्टेप सेकंड में इस इक्वेशन को y x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. dy अपॉन dx d2y अपॉन dx स्क्वायर एंड y इन सभी की वैल्यू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में रखते हैं. स्टेप थर्ड में इक्वेट टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ x. इक्वेशन में जो x का स्मॉलेस्ट पावर होगा उसे 0 से इक्वेट करेंगे. In the identity obtained in step 2 above, we obtain a quadratic equation. The equation so obtained is called indicial equation. Next step, अब जो indicial equation है हम उसका रूट्स फाइंड करते हैं. उस रूट्स को सिंबल स्मॉल r देते हैं. नेक्स्ट स्टेप में on the basis of the value of r following 4 cases arises. अब r की जो भी वैल्यू हमें ऑब्टेन हुई है r1 r2 उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 4 केसेस हैं. अब ये जितने अबव मेंशन्ड स्टेप्स हैं इन सभी को हम एक एक एग्जांपल से नेक्स्ट में एक्सप्लेन करेंगे. सो फॉर स्टेप 5 ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ r फॉलोइंग 4 केसेस अराइजेस. केस फर्स्ट, द रूट्स ऑफ इंडिशियल इक्वेशन r1 से r1 एंड r2 आर अनइक्वल. अगर हम r1 r2 दो रूट सपोज कर लें इंडिशियल इक्वेशन का तो फर्स्ट केस है कि वो अनइक्वल है एंड डू नॉट डिफर बाय एन इंटीगर. केस सेकेंड है द रूट्स ऑफ इंडिशियल इक्वेशन आर अनइक्वल मीन्स r1 नॉट इक्वल टू r2 डिफरिंग बाय एन इंटीगर एंड मेकिंग ए कोफिशिएंट ऑफ y इन डिटर्मिनेंट. केस 4 द रूट्स आर अनइक्वल डिफरिंग बाय एन इंटीगर एंड मेकिंग ए कोफिशिएंट ऑफ y इनफाइनाइट. So last step is we equate to 0 the coefficient of general power of x to obtain the recurrence relation, and then after getting various coefficients we can obtain the solution easily. Now we will take example based on different cases arises in step 5. So we have taken example based on roots of indicial equations are unequal and not differing by an integral value. So the example is solve 3xy double dash plus 2y dash plus y is equal to 0. So first we write it in standard form. So d square, which is in d square y upon dx square plus 2 upon 3x dy upon dx plus y upon 3x is equal to 0, where p is equal to 2 upon 3x and q is 1 upon 3x. तो ये ऑब्वियस है कि x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है. या आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के जो भी कंडीशन थे, जो लिमिटिंग वैल्यू थी, वो आप चेक करके ये फाइंड कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 यहाँ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है. सो हियर x इज इक्वल टू 0 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट. क्योंकि ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो हमने यहाँ पे y इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cn x टू द पावर n प्लस r को सॉल्यूशन एज्यूम किया है इक्वेशन फर्स्ट का. अब इस y को डिफरेंशिएट करने पे विथ रिस्पेक्ट टू x वी हैव dy अपॉन dx इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cn n प्लस r x टू द पावर n प्लस r माइनस 1. अगेन डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x वी हैव दिस वन summation n from 0 to infinity cn n plus r into n plus r minus 1 x to the power n plus r minus 2. Now by putting these value of y dy upon dx and these 2y upon dx square in equation first, we have 3x summation n from 0 to infinity cn n plus r minus 1 x to the power n plus r minus 2 plus 2 summation n from 0 to infinity cn into n plus r x to the power n plus r minus 1
plus summation n from 0 to infinity Cn x to the power n plus r is equal to 0. So we have from here summation n from 0 to infinity Cn 3n plus r into n plus r minus 1 x to the power n plus r minus 1 plus summation n from 0 to infinity 2Cn into n plus r x to the power n plus r minus 1 plus summation n from 0 to infinity Cn x to the power n plus r is equal to 0. Now summation n from 0 to infinity take common from this series and this series. So we have this one 3 into n plus r into n plus r minus 1 plus 2 into n plus r Cn x to the power n plus r minus 1 plus this term summation n from 0 to infinity Cn x to the power n plus r is equal to 0. Now here we can see here x power is, अब यहाँ से हमारे पास दो पावर सीरीज है. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दो पावर सीरीज को कैसे ऐड करते हैं, तो ये वही प्रोसेस लगा हुआ है. अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो पावर सीरीज का जो टॉपिक है आप उसे ओपन करके ये पढ़ सकते हैं. ये प्रोसेस बिल्कुल वही है, तो वही प्रोसेस से हमने यहाँ तक ऑब्टेन किया है. नाउ वी हैव टू ऑब्टेन इंडिशियल इक्वेशंस. सो इंडिशियल इक्वेशंस जैसा हमने पहले ही मेंशन किया है कि जो लोएस्ट पावर x का कोफिशिएंट होता है उसे हम इक्वेट करते हैं 0 से. तो यहाँ पे द कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इज x टू द पावर r माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो x टू द पावर r माइनस 1 का कोफिशिएंट है c नॉट r इंटू 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब c नॉट की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, तो यह r इज 0 एंड 1/3. सो इंडिशियल इक्वेशन के दो रूट हैं 0 एंड 1/3. Here we see that the roots obtained is 0 and 1/3 which are unequal. अगर हम इसमें से r1 is equal to 0 सपोज कर लें और r2 is 1/3 तो both are not equal और ये कोई इंटीग्रल वैल्यू भी नहीं है. r1 माइनस r2 में दोनों रूट का जो डिफरेंस है that is not an integral value. Now we have to obtain recurrence relation. So equating the coefficient of general term x to the power k plus r, which is this one, 3 into k plus r into k plus 1 plus r plus 2 into k plus r plus 1 closes bracket c k plus 1, and from this series we have ck is equal to 0. So we have c recurrence relation as ck plus 1 is equal to minus ck upon k plus r plus 1 into 3k plus 3r plus 2. अब हम इस रिकरेंस रिलेशन में k इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 ये सब इसकी वैल्यू पुट करेंगे. सो बाय पुटिंग k इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड c1 इज इक्वल टू माइनस सी नॉट अपॉन r प्लस 1 इंटू 3r प्लस 2. अब अगर हम k की वैल्यू 1 रखें तो c1 प्लस 1 इज 2, c2 इज इक्वल टू माइनस c1 अपॉन r प्लस 2 इंटू 3r प्लस 5. बिकॉज वी हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ c1, सो अब इस c1 की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं. एंड आफ्टर पुटिंग c1 इन c2 वी हैव c2 इज इक्वल टू c नॉट अपॉन r प्लस 1 इंटू r प्लस 2 इंटू 3r प्लस 2 इंटू 3r प्लस 5. नाउ फॉर k इज इक्वल टू 2 वी हैव c3 इज इक्वल टू माइनस c2 अपॉन r प्लस 3 इंटू 3r प्लस 8. अब अगर हम c2 की वैल्यू इसमें रख दें तो वी हैव माइनस c नॉट अपॉन r plus 1, r plus 2 into r plus 3 into 3r plus 2 into 3r plus 5 into 3r plus 8 and dot dot. So here we have first solution for r1 is equal to 0. अगर हम r1 is equal to 0 रखें तो c1 की वैल्यू होती है माइनस सी नोट अपॉन 2. कैसे? अगर हम यहाँ पे r की जगह r1 रखें और ये 0 हो जाएगा तो माइनस सी नोट अपॉन 1 इंटू 2 दैट इज माइनस सी नोट अपॉन 2. इन सिमिलर वे C2 में अगर हम r1 इज इक्वल टू 0 रख दें तो C2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस C1 अपॉन
2 into 5 that is minus C1 upon 10. अब C1 की वैल्यू हम ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं माइनस C0 upon 2, तो उसकी वैल्यू रख के हमें फाइनली C2 is equal to C0 upon 20 मिल रहा है. In similar way we can find C3, C4 and onward. Hence by our trial solution, that is y is equal to summation n from 0 to infinity Cn x to the power n plus r, we have y when r1 is equal to 0, when r is equal to r1 is equal to 0, we have C0 into 1 minus half x plus 1 upon 20x square minus 1 upon 480x cube plus डॉट डॉट. ये कहाँ से आया? अगर हम r1 इज इक्वल टू 0, अगर हम इस ट्रायल सोल्यूशन का एक्सपेंशन करें, यहाँ पे अगर हम 0 रखें n इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा हो जाएगा C0 और x टू द पावर 0 प्लस 0 डेट इज x टू द पावर 0. तो C0 सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट एक्सपेंशन के लिए अगर n की वैल्यू 1 रखें तो C1 इंटू x टू द पावर 1 प्लस 0 डेट इज दिस वन. फिर अगर हम n इज इक्वल टू 2 रखें तो फिर हमारा ये होगा 1.20 इंटू एक्स स्क्वायर. इन सिमिलर वे वी कैन ऑब्टेन दिस. इन सिमिलर वे फॉर r इज इक्वल टू r2 is equal to 1/3, we can obtain the solution. Y at r is equal to r2 is equal to 1/3. We have C0 bracket x to the power 1/3 minus 1/4 x to the power 4/3 plus 1/56 x to the power 7/3 plus डॉट डॉट. अब हमने फर्स्ट r1 is equal to 0 पे जो ऑब्टेन किया है उसे इक्वेशन 4 सपोज कर लेते हैं एंड इक्वेशन, और जो सेकंड है y is equal to 1 r is equal to 1/3 पे उसे हमने इक्वेशन 5 सपोज किया है. अब जो हमारा फाइनल कंप्लीट सोल्यूशन होगा दैट इज y is equal to ay1 plus by2, where y1 we can write from equation 4th and y2 from equation 5th. So this is the final required solution of the given differential equation.